good morning students. Let us start our today's class. So in last class we learned about formula for integration by parts. Since few students are new today, so let us recall once the formula for integration by parts. So integration by parts is basically used, integration by parts को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत हो. So recall all those formulas, integration by parts. So recall all those facts from yesterday's class. Suppose you want to integrate u into v, that is product of two functions. For example, we want to integrate x into log x. इसका इंटीग्रेशन चाहते हैं x log x of dx, like this u into v of dx. इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं. So we learned that we will select sorry, yes, प्रेजेंटेशन सर दिख नहीं रहा है सर प्रेजेंटेशन. just a minute. यस सर. Okay, so we want to integrate the product of two functions, that is x log x into x, kind of x log x. It is an example of which can be solved using integration by parts. So suppose we want to integrate u into v dx, like this. इस तरह के इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? So I said that first we will select which one is first function and which one is second function. So suppose here u is first function, this is our first function and this is our second function. Let us assume. So we will select first function and second function by the rule of Liet, either by the rule of Liet or Elet. You can use any of these. Both of them are correct. Elet. You can use any of them. Okay? Both of these are correct. Liet and Elet, both of them are correct. So I explained yesterday. So suppose u is my first function, then it will be u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, माने केवल v और dx को इंटीग्रेट करेंगे, उसके साथ u को प्रोडक्ट करेंगे. माइनस क्या होगा? माइनस हम पहले v u का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव du dx, उसके साथ प्रोडक्ट करेंगे यहां पर जो इंटीग्रेशन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx. ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो a कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद a भी कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, जो मिलेगा टोटल मान लेते हैं, जो भी आएगा यहाँ पर जो भी आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा था. तो पूरा फॉर्मूला को एक बार और रिकॉल करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, टू फंक्शंस u, one of them u, another one is v. So first we will select, our first job is to select which one is first function, which one is second function, and this selection will be made using Liet or Elet, using any method. Okay, some books have written Elet and some books have written Liet, both of them are correct. So now after selecting the first function and second function, we will start moving to integrate. इंटीग्रेशन कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दैट इज यहां पर फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है. इसको अगर लैंग्वेज में बोले इस टर्म को तो ये क्या है? फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस यहां पर क्या है? यहां पर है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर जो बनेगा उसका पूरा इंटीग्रेशन. अंडरस्टूड? सबको ये बात समझ में आया? कल ये फॉर्मूला हम लोग किए थे. Then recall one more fact is that suppose we have integration of this form e to the power x into e to the power x के साथ प्रोडक्ट में है fx प्लस ऑफ f डॉट x, fx प्लस ऑफ f डॉट x, माने e to the power x के साथ दो टर्म प्रोडक्ट में है, dx कर रहे हैं. इनमें से यहां पर कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है, बट यहां पर क्या होगा? इधर जो टर्म रहेगा, ये टर्म जो भी होगा, इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव यहां पे रहेगा. यहां पर कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर जो रहेगा उसका डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. देन हम लोग कल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रूव किए थे कि इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ नॉट इंटीग्रेशन, इसका आंसर होगा e टू द पावर ऑफ fx ओनली, e टू द पावर ऑफ fx
e to the power x into fx plus of c. I forgot to written here c also. C is integrating constant. So e to the power x into fx. माने इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है इसका एग्जाम्पल. सपोज यू वांट टू इंटीग्रेट e to the power x into, you want to integrate e to the power x into sin x plus of cos x of dx. ये एक्सरसाइज का ही एक एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में है ये एग्जाम्पल. सो e टू द पावर x मैच हो गया, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, नो प्रॉब्लम, बट उसका ही डेरिवेटिव सामने है. देखो साइन x का डेरिवेटिव, ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव है. साइन का डेरिवेटिव cos x है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x, और यहाँ पर जो फंक्शन है वही e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस ऑफ c. यही हो जाएगा इसका आंसर. सो ये एक एग्जाम्पल था. तो अगर जो स्टूडेंट नए हो उनमें से कोई बताने की कोशिश करो तो इसका आंसर क्या होगा. सपोज वी वांट टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x ऑफ dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस. सौरभ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन. सौरभ आर यू देयर. सर नहीं पता सर. निशु क्या होगा इसका इंटीग्रेशन. e to the power x into x square plus c. e to the power x into x square plus of c. क्यों ऐसा होगा, इसीलिए e to the power x है, ठीक है, बस यहाँ पर x स्क्वायर है और उसका ही एग्जैक्टली डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है. तब क्या होगा, केवल इन दो प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा. इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके अगर तुम लोग करते भी हो, दोनों को स्प्रेड करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हो, तो उसका आंसर अल्टीमेटली यही आएगा. ओके. यस सर, समझ गए. So let us solve few problems from exercise 7.6. Let us start exercise 7.6. Yesterday I solved few questions. Today also we will solve few more questions from exercise 7.6. So let us start. Let us solve few questions. So suppose everyone open exercise 7.6 from your book. So this is exercise 7.6. So let us solve few problems from this book. Yesterday we solved this question number 1, x sin x. I solved this question in your class, x sin x. Then I solved x sin x. Then I solved sin inverse x का whole square. And x, when we are solving sin inverse x का whole square, just try to recall, वहाँ पे एक टर्म ऐसा आया था, x into साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx. इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय, क्योंकि इसी का एक टर्म ऐसा होगा और जो कि इसी के बराबर इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन नंबर 11 है. ओके. सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन कंप्लीट. सो हियर tan इनवर्स x ऑल्सो. दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स. सो लेट मी सॉल्व प्रॉब्लम लाइक, Which one you want to solve? कितना नंबर करना है. कल जो लोग क्लास किए थे घर में कोशिश किए थे. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. हाँ बोलो. Question number 18. क्वेश्चन नंबर 18. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 विल बी सॉल्व्ड. नीरज का क्वेश्चन बुक से अभी इस एक्सरसाइज से है कि बाहर से है. बाहर से. तो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, सब लोगों को क्लास समझने दो फिर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 अभी शुरू करते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम दिस. So question number 18, it is asking to find the integration of e to the power of x into 1 plus of cos x divided by 1 minus of 1 plus of sin x. 1 plus of sin x of dx. Let me confirm once. So it is sin x ऊपर है और नीचे cos x है, उल्टा लिखा. Anyway, so it is 1 plus of sin x into 1 plus of cos x. कल जो लोग क्लास किए थे उनमें से किस किस का क्वेश्चन हो चुका है, कितने लोग इसको कंप्लीट किए हो, कितने लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए हो. none of you. ऐसे कैसे चलेगा. 1 plus of sin x था.
1 प्लस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। नीरज क्या करेंगे, क्या हम डायरेक्ट यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे? नो सर, थोड़ा सा उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। पहले हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ला के मतलब। गुड 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 गुड, वेरी गुड। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज को हम यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज करके हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एक इंटीग्रेशन छोटा सा हो जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए हम पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज को रिकॉल करते हैं। जैसे ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा डिनोमिनेटर का? 2 cos square x by 2. 2 cos square x by 2. 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, और ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हम क्या बना सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स 1 जो है, cos x by 2. क्या बना सकते हैं? 1 plus 2 sin x by 2 cos x by 2. उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, इसको अल्टीमेटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये अल्टीमेटली इतना में ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, कैसे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग? देखते हैं कि कैसे ये ट्रांसफर होगा 1 प्लस साइन एक्स। कुछ नहीं है तो इसका आंसर बाद में करेंगे, पहले हम 1 प्लस साइन एक्स वाला ये जो टर्म है, इसको कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाए वो देखते हैं। आंसर देखो, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, जहां भी रहेगा इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। 1 के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। तो यहां पर एंगल मैंने लिया x बाई 2 और यहां पर भी वही एंगल लिया x बाई 2। इफ आई राइट साइन स्क्वायर ऑफ नीरज प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ नीरज, देन ऑल्सो इट इज 1। तो यहां पर जितना एंगल लिया था मैंने, यहां पर भी उतना एंगल लिया। सो 1 के बदले वी कैन राइट दिस कंप्लीट टर्म इन टर्म्स ऑफ 1 के बदले हम इतना पूरा लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? नो प्रॉब्लम? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स है, इसके बदले हम लिख सकते हैं जो तुम लोग बोल रहे हो कि 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। करेक्ट, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ये वाला राइट साइड को देखो, ए है ए स्क्वायर, ए है बी स्क्वायर, ए है 2ab, जहां पर a इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, b इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2। तो ये राइट हैंड साइड टोटल मिला के कितना हो जाएगा? ये राइट हैंड साइड क्या होगा होल स्क्वायर के फॉर्म में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। हाँ, जहां पर a इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 और b इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2। तो ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? नो सर। नो सर। गुड, वेरी गुड। तो अब ये था 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स करो। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स को हम सिंप्लीफाई करके अभी देखे हैं कि इसका वैल्यू होता है साइन एक्स बाई 2 प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू तुम लोग अभी जस्ट मुझे बोले थे कि इसका वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। करेक्ट, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 लिख दिया उतना। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। और ए 1 प्लस साइन एक्स, लेफ्ट साइड में था 1 प्लस साइन एक्स, राइट साइड में है 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल देते हैं तो ये हाफ हो गया। और नीचे जो एक कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसको अगर होल स्क्वायर के अंदर लेके जाते हैं तो क्या होगा? ओनली कॉस एक्स बाई 2 जाएगा। नीचे अगर ए स्क्वायर कहीं रहते हैं और ऊपर पहले से स्क्वायर है तो अंदर जाएगा, तो ये नीचे अगर यहाँ पर स्क्वायर के अंदर लेके आए, या फिर ये टोटल टर्म को हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, इसको गायब करके, डिनोमिनेटर को गायब करके। तो वही लिखते हैं नेक्स्ट टर्म में, दैट इज
वी वांट टू राइट, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, नीचे भी था स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू था, माने कॉस एक्स बाई टू, ये टोटल टर्म का होल स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है सबको? नो प्रॉब्लम? यस सर। हाफ हो गया, Yes, sir. हाफ हो गया। अब अंदर कौन कौन है? एक है टेन एक्स बाई टू, ये टर्म होगा ये दोनों मिला के, और यहां पर कौन होगा? वन ओनली, प्लस वन, इसका होल स्क्वायर, वन प्लस ऑफ टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? नो प्रॉब्लम? तो अल्टीमेटली e टू दी पावर x से अगर प्रोडक्ट कर दे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ऑफ x, हम लोग को यही निकालने के लिए बोला गया था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू, अब क्वेश्चन शुरू होता है, देयरफॉर ये सिंप्लीफिकेशन किया था, e टू दी पावर x इंटू वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ऑफ कॉस एक्स, इसका टोटल वैल्यू ऑफ dx, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x को रख दिया, और बाकी ये वैल्यू होता है वन प्लस ऑफ टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऑफ dx। क्लियर है? इसका वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ये टोटल टर्म का वैल्यू होता है हाफ इंटू ए, तो हाफ को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन का, और ए हो गया इसे वन प्लस ऑफ टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आगे कितने लोग इसको कर सकते हो, या फिर आगे भी बताना होगा? कोई बता सकते हो आगे कैसा होगा ये प्रॉब्लम? अब सर 10 स्क्वायर मतलब उसको खोलेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन, हाँ, तो उसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई टू। नो नो नो, गलत गलत। इसको खोलेंगे तो केवल टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन नहीं होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो प्लस टू टेन एक्स बाई टू एक टर्म और होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में। अंडरस्टूड? हाँ सर। माने इसको अगर खोलेंगे तो ये होगा हाफ इंटीग्रेशन, ये रहा e टू दी पावर ऑफ x, सेकेंड ब्रैकेट देखिए मैं लिख रहा हूं, यहां पर होगा एक फर्स्ट टर्म a स्क्वायर माने वन, b स्क्वायर माने टेन स्क्वायर ऑफ x बाई टू, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म है प्लस ऑफ टेन एक्स बाई टू, टू टेन एक्स बाई टू, नॉट ओनली टेन एक्स बाई टू, इट इज टू टेन एक्स बाई टू, करेक्ट, टू टेन एक्स बाई टू ऑफ dx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, लिख रहे हो ना तुम लोग? कोई दिक्कत नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स लेफ्ट साइड में था, मैं एक बार और लिख रहा हूं, तुम लोग नीचे नीचे लिख सकते हो, इक्वल टू साइन देके, वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ऑफ कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, पहले से हाफ बाहर था, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स था, अब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर इसको देखो क्या क्या है, ये दोनों मिला के क्या होगा, ये प्लस वन प्लस ऑफ टेन स्क्वायर समथिंग, एंगल है एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, तो इसके बदले हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, और नेक्स्ट टर्म जो है वो है टू टेन ऑफ एक्स बाई टू, टू टेन ऑफ एक्स बाई टू ऑफ डी एक्स। अब दोनों को स्प्रेड कर दो तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन है, इस लाइन के बाद ना एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ऐसा है, देखो इस लाइन के बाद देखो आराम से, इसको मैं घुमा के लिख रहा हूं अभी, देखो टू टेन ऑफ एक्स बाई टू मैंने लिखा, और प्लस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मैंने लिखा। इस लाइन से कोई डायरेक्टली मुझे आंसर बता सकते हो? कोई बाई पार्ट्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर कौन बता सकते हो? बताओ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने की जरूरत नहीं है। पावर एक्स 10x by 2 plus c, नॉट 10x by 2 प्लस सी, 10x by 2 हाफ जो है, अच्छा तुम हाफ के साथ बैलेंस करके बता रहे हो, देखो इसको समझो, यहां पर जो टर्म है ना इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये टोटल टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, मैं राफ में लिख रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ टू टेन एक्स बाई टू, इसका डेरिवेटिव कैसा होगा, पहले टू कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू के डेरिवेटिव के लिए होगा वन बाई टू, इंटू होगा वन बाई टू, टू टू कैंसिल, माने ओनली सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। सबको ये डेरिवेटिव समझ में आया ना, डी डी एक्स ऑफ टू टेन एक्स बाई टू? यस सर।
तो यहां पर जो टर्म है एग्जैक्टली उसी का डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है, इसी का ही डेरिवेटिव है जो फॉर्म में आज के क्लास के शुरुआत में बोला था, एकदम फॉर्मूला नंबर जो रिकॉल करने के लिए बोला था। देखो ये सब फॉर्मूला के साथ मैच करो, क्या था e टू द पावर x इंटू यहां पर एक फंक्शन ऑफ x और उसी का ही एग्जैक्टली डेरिवेटिव यहां पर था। जैसे यहां पर sin x था उसी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहां पर cos x प्रेजेंट था। जैसे सौरभ को मैं पूछा था, नेक्स्ट पेज में जो सौरभ को मैं पूछा था कि एग्जैक्टली यहां पर x स्क्वायर था उसी का ही डेरिवेटिव 2x यहां पर प्रेजेंट था। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 tan x by 2 है और उसी का ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है sec स्क्वायर ऑफ x by 2। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा हाफ, पहले से बाहर इंटीग्रेशन के बाहर था, और इसका आंसर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट इज e टू द पावर x इंटू 2 tan ऑफ x by 2 प्लस ऑफ c। सबको ये स्टेप समझ में आया गर्ल्स? सबको ये स्टेप समझ में आया क्या? यस सर। ओके ओके, तो अब ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी ओनली e टू द पावर x ऑफ tan x by 2, e टू द पावर x ऑफ tan x by 2 प्लस ऑफ c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर। ओके, दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको ट्रांसफर कर लिया। यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दोगे, ये किस फॉर्मूले की वजह से आया है, वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस ऑफ f डैश ऑफ x, दिस इज इक्वल टू ओनली e टू द पावर x fx प्लस c। एक बार और रिकॉल करा रहा हूं, पहले हम लोगों ने क्या किया इस प्रॉब्लम में, शुरुआत में हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाई किया। एक बार और पूरा प्रॉब्लम बता रहा हूं, इस टर्म को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स के बदले लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस साइन एक्स जहां भी रहेगा इसका मतलब होता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है उसको दोनों को एक स्क्वायर के अंडर लेके आए, एक ही स्क्वायर के अंडर। देखो सब लोग अपने अपने कॉपी में जैसे यहां पर किया था, इस पेज में एक ही स्क्वायर के अंडर दोनों को लेके आए, फिर डिवाइड कर दिया तो हुआ tan x बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर एक अच्छा खासा फॉर्म यहां पर क्रिएट हो गया, इसको स्प्रेड कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो एकदम e टू द पावर x fx प्लस f डॉट x इस फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। सो अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e टू द पावर x इंटू tan x बाई 2। अंडरस्टूड? एवरीवन इज हैप्पी? नो प्रॉब्लम? यस सर। Can I take next page? Okay. Yes, sir. Okay. So any doubt from this exercise? Any more doubt from this exercise? जैसे इस प्रॉब्लम में देखो क्वेश्चन नंबर 19, कौन इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? क्या होगा? e टू द पावर x इंटू 1 by x प्लस c। देखो बाकी लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है? गार्ल्स, रीमा, सौरभ, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? देखो 1 बाई एक्स यहां पर है, उसी का ही डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो वही प्रेजेंट है, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर वही प्रेजेंट है। 2 दिन से नहीं थे क्लास में। अरे आज तो मैं फॉर्मूला बताया है ना, शुरुआत में रिकॉल तो कराया कि e टू द पावर x के साथ यस सर एफ एक्स प्लस ऑफ अगर एफ डैश एक्स रहता है, एफ एक्स रहेगा उसका डेरिवेटिव रहेगा। तो यहां पर कैसा है, 1 बाई एक्स है, उसी का ही डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो अल्टीमेट आंसर इस क्वेश्चन का ओनली आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस ऑफ c, यही होगा इसका आंसर। ओके, एवरीवन इज हैप्पी? नो प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम के लिए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए थिंक अबाउट इट। x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे, उसके बाद फिर उसको फिर से अरेंज करने पर आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। गुड, आई गॉट इट। पर शी सेड दैट x माइनस 3 को हम लिखेंगे x माइनस 1 माइनस ऑफ 2, ऐसे लिखेंगे 3 को। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, इसीलिए बार बार उस दिन से पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में भी यही सिखाया जा रहा है कि डिनोमिनेटर के टर्म्स में न्यूमिनेटर को लिखना है। दैट्स व्हाई वी विल राइट x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 2। तो आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो x माइनस 1 का होल क्यूब, तो इधर भी x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर स्प्रेड कर देंगे, दोनों को स्प्रेड कर देंगे।
कितना अच्छा खासा फॉर्म बनेगा देखो इसका, कितना इसी इजी प्रॉब्लम है ये सब। क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 20। सो यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 ऊपर था और नीचे दिया हुआ है x, नीचे ऊपर है x माइनस 3 और नीचे है x माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब इंटू ई टू द पावर ऑफ x ऑफ dx। यही है इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर के टर्म्स में न्यूमरेटर को लिखना है न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे जैसे था x माइनस 1 का होल क्यूब जैसे था वैसा रहेगा, ई टू द पावर x था ऑफ dx। ठीक है, अब स्प्रेड करेंगे, इसको टोटल को एक टर्म मानो और a माइनस ऑफ x बाई 2 ए दूसरा टर्म मानो, तो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर स्प्रेड हो जाएगा। डिनोमिनेटर को स्प्रेड कर देते हैं तो एक टर्म होगा x माइनस 1 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब और दूसरा टर्म होगा माइनस ऑफ 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस ऑफ 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। ये हो गया टोटल a वाला टर्म का सिंप्लीफिकेशन। जस्ट दो अलग अलग न्यूमरेटर को तोड़ दिया, डिनोमिनेटर देके तोड़ दिया। कॉमन डिनोमिनेटर है x माइनस होल क्यूब, जैसे 7 माइनस 5 बाई अगर 4 रहता है तो तुम लोग क्या करते हो 7 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 इसको लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट और कुछ नहीं। फिर बाहर ई टू द पावर x था, ई टू द पावर x रखेंगे, dx लिखेंगे, हो गया। अब देखो ऊपर एक x माइनस 1 है, नीचे 2x माइनस 3x माइनस 1 है, तो एक x माइनस 1 यहां से कैंसिल आउट, यहां पर बचा और 2, इस टर्म के लिए सिंप्लीफाई होगा। तो इस लाइन में हुआ ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, तो पहले से बाहर चल रहा है, इसको पहले लिख लेते हैं फॉर्म मैच करने के लिए। और नीचे आप बचा है 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर बचा है फर्स्ट टर्म में, एक x माइनस 1 कैंसिल हो चुका है और सेकेंड टर्म में बचा था माइनस ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ऑफ dx। अब आगे मैं नहीं करूंगा, आई विल आस्क क्वेश्चंस टू यू, यू विल बी आंसर्ड। कौन कौन क्लास में है, किसी और को पूछना, सब लोग सोचेंगे इसका आंसर क्या होगा। एकदम मैच हो चुका है, जो ई टू द पावर x वाला फॉर्म बताया उससे मैच हो चुका है आप क्वेश्चन। कौन बताएगा मुझे देखने दो क्लास में कौन कौन है। साहिल, साहिल एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ साहिल बोलो तो भाई क्या होगा इसका आंसर। आप ट्राई टू मैच, पहले देखो कि ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा कि नहीं। ई टू द पावर x एफ एक्स प्लस ऑफ एफ डैश एक्स, ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखो। ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, कैन वी अप्लाई दिस, इसके बारे में सोचो, फर्स्ट थिंक अबाउट दिस। भारती क्या होगा इसका आंसर? e to the power x by x minus 1 square. गुड गुड गुड, 1 to the power 2. गुड, वेरी गुड। क्यों ऐसा होगा भारती, एक्सप्लेन करो, बाकी लोगों को बताओ ऐसा क्यों होगा, अपने शब्द में बताओ। सर क्योंकि वो उस फॉर्म में e to the power x into fx plus f dot x. हाँ, ये जो 1 माइनस 1 बाई ये वाला जो टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ये सोचना है। डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट होना चाहिए। पहले ये डिफरेंशिएट होगा किस फॉर्म में, रफ में मैं नीचे कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ अगर 1 बाई 1 माइनस, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, पहले 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव के फॉर्म में, माने ये होगा माइनस ऑफ 1 बाई जितना टर्म था x माइनस 1 होल स्क्वायर पहले से था उसका होल स्क्वायर, माने x माइनस 1 का होल टू द पावर 4 होता है ना। डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर रहता है उसका स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हो गया x माइनस 1 का होल टू द पावर 4। फिर x माइनस 1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, x माइनस 1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1, x माइनस 1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव।
फिर x माइनस वन का डेरिवेटिव होगा ओनली 1 इंटू 1 होगा बाई चेन रूल। x माइनस वन का डेरिवेटिव फिर से होगा इंटू 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है उस वाले टर्म को। अल्टीमेटली एक x माइनस वन इसके साथ कैंसिल आउट होके बचा है 3, तो अल्टीमेटली ये बचेगा माइनस ऑफ 2 बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब। सबको ये डेरिवेटिव पहले समझ में आया कि नहीं बताओ, ये वाला डेरिवेटिव? यस सर। साहिल ये डेरिवेटिव तुम्हें समझ में आया है? सौरभ ये वाला डेरिवेटिव? यस सर। यस सर। यस सर। बस अब ये डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो टर्म है उसी का ही डेरिवेटिव ए है। देखो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये जो टर्म है उसी का डेरिवेटिव ए है। माइनस को बैलेंस करते हुए टोटल माइनस के साथ टोटल ए वाला हो गया, तो इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से एफ एक्स उसका डेरिवेटिव, बस बैलेंस हो चुका है। तो अब इसको हम लिख देंगे, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं, ये राफ में जितने कुछ भी किया तो इसका लिख देंगे इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू ये फर्स्ट टर्म में जो है दैट इज 1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c, where c is an integrating constant, where c is an integrating constant, where c is an integrating constant. Happy? Everyone is happy? No problem? हो गया? हो सर। यस सर। ओके ओके, एक बार और मुझे एक्सरसाइज देखने दो, फिर मैं नीरज का क्या क्वेश्चन है वो लेता हूं, नीरज का क्वेश्चन लेता हूं। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो खुद से। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्स स्क्वायर e टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू, ये तो इनफैक्ट पर इस इंटीग्रेशन के लिए जो क्वेश्चन नंबर 23 में जो इंटीग्रेशन है, इसके लिए हमें जरूरत ही नहीं है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की, केवल एक्स क्यूब इक्वल टू जेड पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा। 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। इनफैक्ट ये वाला भी तुम लोग कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 24 में जो है e टू द पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस ऑफ tan x, इसको भी कर सकते हो। कैसे करोगे इसको? जस्ट इसको लिखोगे, थोड़ा सा सोचना है। मैं चाहूं तो पूरा एक्सरसाइज करा सकता हूं, बट इससे तुम सीखोगे नहीं। इसको लिखोगे, सेक एक्स को प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू सेक एक्स फर्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म होगा सेक एक्स इंटू tan x। फिर से देखो e टू द पावर x वाले फॉर्म के साथ मैच हुआ है। यस सर। मैच हो चुका है ना? फिर से यस सर, आ गया। सेक एक्स Yes, है sir. और उसका डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा? एक्स बी। B is the Sec correct x answer. plus c. e टू द पावर x इंटू सेक एक्स प्लस ऑफ c। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन करना, एक बार समझ जाओगे तो रेफरेंस बुक से भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डाउट नॉट का मदद लोगे, वहां से भी मिल जाएगा। वहां भी नहीं होता है तो व्हाट्सएप में वॉइस नोट भेजोगे कि सर ये नहीं हो रहा है। खुद से सीखो, मजा आएगा पढ़ने में, मन बहुत खुश रहेगा। नहीं पढ़ोगे तो मजा आएगा, खुद से मन बहुत हैप्पी रहेगा। एनीवे, तो आप क्वेश्चन उठाते हैं कि नीरज का क्या क्वेश्चन है। हाँ बोलो नीरज, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, आप बोलो। सर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन था। tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये क्वेश्चन कहां से मिला तुम्हें? सर एक बुक है जीएन बर्मन, उसको सॉल्व करे थे, उससे मिला था। ये अब मैं क्लास में कराऊंगा नहीं, ठीक है? इसको मैं क्लास में कराऊंगा नहीं। ये सब क्वेश्चन कभी नहीं आएगा तुम लोगों के सिलेबस में। tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये सब क्वेश्चंस कभी नहीं आएगा। अगर इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर देते हो तो क्या ये आंसर हो जाएगा? कितने लोग बता सकते हो क्या इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली करते हो? डेफिनेटली नहीं होगा अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो तो। इसके लिए कुछ अलग सा फॉर्म चाहिए। हिंट्स के तौर पर मैं बता रहा हूं, हम मानेंगे इसको i इक्वल टू, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको मानेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स ऑफ dx। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है इसके साथ मान लेते हैं कि प्रोडक्ट में 1 है, तो एक होगा फर्स्ट फंक्शन, दूसरा होगा सेकंड फंक्शन। ए वाला टर्म जो होगा वो हो जाएगा सेकंड फंक्शन,
और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। फिर हम इसका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन शुरू करोगे फिर तुम देखना घूम फिर के यही वाला टर्म फिर से आ जाएगा राइट हैंड साइड में, माने एक टर्म तो सिंप्लीफाई पहले हो गया, यहाँ हो गया, फिर माइनस कुछ रहेगा, जो रहेगा दैट विल बी समथिंग इनटू फिर से आई, माने यही tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स फिर से वापस आ जाएगा। तो ये जो आई आ गया इसी का वैल्यू फिर से रिप्लेस करना है। मैं कर रहा हूं इसको, देखो मान लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी इंटीग्रेशन का एक मेथड है, तुम लोगों के सिलेबस में ऐसा इंटीग्रेशन एक भी नहीं है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया। पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, इनवर्स फंक्शन जो होते हैं दैट इज ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि अगर आईलेट भी तुम समझते हो तो पहले आई रहता है तो इनवर्स फंक्शन जो होगा दैट विल बी ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है ए है सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल देंगे, निकाल दिया tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, फर्स्ट फंक्शन बाहर चला गया। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली, 1 इंटू डी एक्स माने कितना, ओनली dx, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अब पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, माने इस वाले टर्म का हम डेरिवेटिव लिखेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर के बदले है रूट एक्स का होल स्क्वायर माने ओनली x। सबको समझ में आया यहां तक ये वाला टर्म? यस सर। फिर हम करेंगे यहां पर जो वाला टर्म है माने ए जो प्रेजेंट है इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ओनली x बाई 1 प्लस ऑफ x, करेक्ट। फिर हम इस टोटल टर्म का इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर मिस हो गया सर। क्या मिस हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मिस हो चुका है, सही बोले हो। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन में और भी टर्म बचा है, सही बोला है। 1/2 रूट एक्स हाँ 1/1 प्लस एक्स यहाँ पर तो हो चुका है। फिर रूट एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट में है इसका इंटीग्रेशन माने ओनली x, फिर dx, सही है। तो ये फर्स्ट टर्म में तो कुछ नहीं है, ये तो केवल x, इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसको लिख देते हैं x tan इनवर्स ऑफ x माइनस, यहाँ पर ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको लेके मेरा कोई दिमाग खराब नहीं करना है मुझे, इसको हम बाहर निकालेंगे, हाफ चला गया। इस रूट एक्स के साथ यहाँ पर x का x टू द पावर एक रूट एक्स ऊपर बचेगा केवल, माने ऊपर अब है ओनली रूट एक्स और नीचे है 1 प्लस ऑफ x ऑफ dx, ऊपर है रूट एक्स नीचे है 1 प्लस ऑफ x dx। अब क्वेश्चन है कि ए वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा, यही है क्वेश्चन कि इस इंटीग्रेशन को हम कैसे निकालेंगे, x टू द पावर हाफ बाई 1 प्लस ऑफ x कैसे होगा, कौन बता सकते हो? ऑलवेज रिमेंबर ये बात, ये सब फॉर्म तुम लोगों के सिलेबस में बहुत ही कम है। अगर कहीं भी 1 प्लस समथिंग टाइप रहता है डिनोमिनेटर में, समथिंग का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह के रहते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम हमेशा पुट करेंगे पुट x इक्वल टू tan या फिर sec, या आइदर tan और sec, tan थीटा पुट करेंगे या फिर tan t पुट करेंगे। अगर 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर रहता है तो जैसे कि यहां पर ऊपर कितना है, ऊपर है रूट एक्स और नीचे कितना है, नीचे है 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। नीरज तुम्हें समझ में आ रहा है ऊपर के साथ नीचे की बैलेंस? अगर रूट एक्स को हम t मानते हैं तो ऊपर जो है नीचे बस उसी का ही स्क्वायर है, 1 प्लस ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम रूट एक्स इक्वल टू मानते हैं कि कितना, रूट एक्स इक्वल टू मानते हैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर ऑफ थीटा मानेंगे क्योंकि 1 प्लस वाला फॉर्म है। अगर यहीं पर रूट 1 माइनस रहता तब हम मानते साइन थीटा और कॉस थीटा, दीज आर फॉर्म्स। अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम मानेंगे x इक्वल टू आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा, एनी ऑफ देम। अगर डिनोमिनेटर में रहता है 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम मानेंगे x इक्वल टू आइदर tan थीटा
और सेक थीटा, एनी ऑफ देम। अगर डिनोमिनेटर में रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 तब हम मानेंगे, सॉरी ये tan थीटा और cot थीटा, आइदर tan थीटा और cot थीटा। अगर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 रहता है तो हम मानेंगे x इक्वल टू आइदर सेक थीटा और कोसेक थीटा। दीज आर फॉर्म्स टू बैलेंस्ड। तो यहां पर अगर तुम x इक्वल टू मान लेते हो tan स्क्वायर ऑफ थीटा तो क्या होगा देखो, अगर हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा तो क्या होगा देखो इस प्रॉब्लम में। तो क्या होता है देखो इस प्रॉब्लम में, आगे बढ़ रहा हूं। पुट x इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा, तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा, फिर tan थीटा का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव होगा d थीटा। तो ये हो गया dx का वैल्यू, और ऊपर और कौन है, रूट x है, यहां से मिलेगा रूट x इक्वल टू ओनली tan थीटा। ठीक है, सब लोग ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर था, सॉरी रूट नहीं, ये था tan इनवर्स ऑफ रूट x ऑफ dx, और इधर कौन बचा है, इधर पहले से तो एक टर्म हो गया था x tan इनवर्स ऑफ x, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रहा था। ये था माइनस हाफ इंटीग्रेशन, ये राफ था माइनस हाफ इंटीग्रेशन, ऊपर रूट x के बदले अब हम लिखेंगे tan थीटा। ये वाला तुम लोग लिख चुके हो ना, ये पुट वाला टर्म, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, लिखने की जगह नहीं हो रहा है। माने ऊपर लिखेंगे रूट x के बदले tan थीटा और dx के बदले लिखेंगे 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये टोटल टर्म लिखेंगे ऊपर। तो रूट x के बदले हमने लिखा tan थीटा और dx के बदले लिखा हमने 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे था 1 प्लस ऑफ, अब हमने पुट किया x के बदले tan स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा d थीटा। बस अब हो चुका है, आप फॉर्म दिख रहा है, x tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन, हाफ के साथ अच्छा ये हाफ और ऊपर पहले ऊपर एक और 2 है, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल दिया। अब ऊपर अभी है, एक है tan स्क्वायर थीटा, दूसरा है sec स्क्वायर ऑफ थीटा, और नीचे अभी के लिए प्रेजेंट है tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और नीचे प्रेजेंट है अभी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माने sec स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा माने sec स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, d थीटा है। अब sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो आप बचा है x tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x नहीं, ये रूट x चल रहा था, x tan इनवर्स ऑफ रूट x था क्वेश्चन में, x tan इनवर्स ऑफ रूट x, tan इनवर्स रूट x को बाहर निकाल दिया था ना फर्स्ट टर्म में, x tan इनवर्स ऑफ रूट x ये चल रहा था। अब ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है, और यहां पर कौन बचा है, ओनली tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसको लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 ऑफ d थीटा। tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, केवल इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसे ही स्प्रेड कर दोगे आंसर हो जाएगा। तो बचा है, और हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट x ऑफ dx, दिस इज इक्वल टू, पहले से इधर लेफ्ट हैंड साइड में x tan इनवर्स ऑफ रूट x ए टर्म, माइनस आप स्प्रेड करना शुरू करो, तो ये माइनस sec स्क्वायर थीटा d थीटा एक टर्म, और माइनस माइनस प्लस d थीटा एक और टर्म, तो इंटीग्रेशन माइनस ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा एक टर्म, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा एक और टर्म। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। x tan इनवर्स ऑफ x sec स्क्वायर थीटा की बदले अब हम पुट कर देंगे कुछ नहीं, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ओनली tan थीटा, और प्लस इस टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओनली थीटा प्लस ऑफ c। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दो, थीटा का वैल्यू हमने लिया था tan स्क्वायर ऑफ, सॉरी x tan इनवर्स x, थीटा का वैल्यू क्या होगा इस प्रॉब्लम से देखो, थीटा का वैल्यू रिप्लेस, इंटीग्रेशन हो चुका है, बस थीटा का वैल्यू लिखना है। हमने पुट किया था, कहां गया, अच्छा पुट वाला टर्म हमने इरेज कर दिया था मैंने, तुम लोग अपने अपने कॉपी में देखो, पुट था ऐसा, पुट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा था, तो यहां से मुझे ओनली थीटा का वैल्यू चाहिए, तो पहले स्क्वायर को हटाओ, तो यहां से मिलेगा tan थीटा इक्वल टू, यहां से मिलेगा रूट x, हैप्पी, नो प्रॉब्लम, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, फिर थीटा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ रूट x। अगर tan थीटा इक्वल टू रूट x है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ रूट x, दैट्स इट।
तो ये हो गया tan, अच्छा इनफैक्ट tan थीटा का वैल्यू एक ही बार में रिप्लेस कर दो रूट एक्स, tan थीटा इक्वल टू मिला रूट एक्स, तो पूरा एक ही बार में इस टर्म के बदले लिख दो, tan थीटा की बदले लिख दो रूट एक्स। ऐसे ही ना इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन होता है, हमने जिसको सब्स्टिट्यूट किया है उसका वैल्यू अब लिखना है। tan थीटा के बदले लिख दिया रूट एक्स, और थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। इस टर्म में मैंने रूट मिस किया, इस टर्म में भी मैंने रूट मिस किया, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस ऑफ सी। अब यहाँ भी एक tan इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ भी एक tan इनवर्स रूट एक्स है, दोनों को एक साथ कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स अलग सा टर्म है प्लस सी। दिस इज द आंसर वेयर सी इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्या क्या मैंने पूरा क्वेश्चन को एक बार और राफ में बता रहा हूं, सब लोग लिख चुके हो? यस सर, यस सर। इस क्वेश्चन को एक बार और राफ में मैं बता रहा हूं कि कैसे किया गया है, इसको एक बार और राफ में बता रहा हूं। इनफैक्ट ये वाला फॉर्म भी समझना जरूरी है। इंटीग्रेशन हमें निकालने के लिए दिया गया था tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर 1 है मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किया। जैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किया, यहाँ पर कोई टर्म है उसको लेके कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म जो था वो इंटरेस्टिंग था, वो टर्म ऐसा था रूट एक्स बाई 1 प्लस ऑफ एक्स ऑफ dx, ऐसा था। इस टर्म के इंटीग्रेशन में मानो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो है उसी का ही स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमने बोला कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप कोई भी टर्म रहता है या फिर टी स्क्वायर रहता है, तो तुम ऑलवेज पुट करोगे टी इक्वल टू tan थीटा या फिर cot थीटा, दोनों में से कोई भी एक। समझ में आया निशु ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। माने जैसे ही इसको पुट कर दिया ना टी इक्वल टू tan थीटा, फिर ये क्वेश्चन छोटा हो चुका है। माने यहाँ पर x प्रेजेंट है, x के बदले प्रेजेंट करना है t इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर तो x नहीं है, इसको x स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर मानो, रूट एक्स बाई 1 प्लस ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो हम इसको मानेंगे tan थीटा। दैट्स वाई यहाँ पर आया था x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने माना था। यही है इसके पीछे लॉजिक, इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हें a सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाता है, मान लो ऊपर ऐसे है 2x डिवाइडेड बाई, नीचे ऐसे डाला गया है, जानबूझ के मैंने डाल दिया ऐसे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या पुट डालेंगे हम इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए? वैसे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन अलग तरीके से भी पॉसिबल है, बट अगर पुट डाल के करेंगे तो क्या पुट देंगे? एक्स इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। नहीं रे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने रूट के अंदर डाला। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो भी विदाउट रूट रहता तब हम डालते tan थीटा और cot थीटा। यहां पर पुट करना होगा आइदर साइन थीटा और cos थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे मेरे दिमाग में आया कि ऐसे करना है? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्रिएट होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, रूट गायब हो जाएगा। समझ रहे हो निशु, नीरज, रीमा? हाँ सर। यस सर। अगर यहां पर सेम इसी प्रॉब्लम में अगर रहता 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर ए वाला टर्म रहता तो हम पुट देते x इक्वल टू कोसेक थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा दे देते हैं, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर गायब हो जाएगा। अगर मान लो रूट दिया हुआ है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा पुट जैसे ही पुट देंगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माने उसके बदले हम लिख देंगे tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और वो tan स्क्वायर थीटा इस रूट को खा जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये है इसके पीछे लॉजिक, इस टाइप के प्रॉब्लम के पीछे लॉजिक। तो इन एग्रीगेटेड वी कैन से दैट अगर डिनोमिनेटर में रहता है 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप कोई टर्म, तो हम पुट देंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा। अगर रहता है डिनोमिनेटर में रूट भी रहता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी रहता है, तो हम पुट डालेंगे उसमें x इक्वल टू साइन थीटा। अगर डिनोमिनेटर में रूट भी रहता है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है, तो उसका पुट डालेंगे हम पुट x इक्वल टू सेक थीटा। ये है इसके पीछे लॉजिक। और अगर ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, मान लो ऐसा रहा 1 प्लस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तब क्या करोगे, ये टोटल ये पूरा ए एक्स इक्वल टू पुट करोगे tan थीटा, ये टोटल जो रहेगा। ये है इसके पीछे लॉजिक।
ओके, सो अगर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम और बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप एवरीवन विल कंप्लीट देयर एक्सरसाइज।